प्लीज गो एंड चेक यूपीएससी सिलेबस. इट इज एक्सट्रीमली एब्स्ट्रैक्ट. इट इज वेग. आप अपनी इंस्टिंक्ट के बेसिस पे एग्जाम प्रिपेयर करोगे तो प्रॉब्लम में फंसोगे. हैविंग अ माइक्रो थीम पीडीएफ इज जस्ट 5-10% ऑफ द ओवरऑल वर्क. इट फंडामेंटली चेंजेस द वे you approach this exam. Today's session is about how to actually use micro theme so that it actually helps you guide and qualify the exam. Please understand, having a PDF is not going to bring any change in your preparation at all. I hope you understand that. Like you just added one more content without realizing कि उसको actually में पूरा use कैसे करना है. All of you who have the PDF, who are aware of, you're still likely to make two fatal mistake in this exam even after you have the micro theme PDF. You can do this on your own. You can just sit down and figure out पिछले 30 15 10 सालों के PYQ, categorize them under actual topics and themes, and then prioritize them basis the frequency of questions. So one theme will become more important because उससे ज्यादा क्वेश्चन आए. That is what I mean by frequency of questions. जिस थीम से कम क्वेश्चन आए उसकी प्रायोरिटी आपके दिमाग में कम होनी चाहिए. डोंट डू दैट. वी हैव ऑलरेडी डन दैट. वी नीड टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग आफ्टर टुडे. द फर्स्ट एम ऑफ हैविंग दैट माइक्रो थीम पीडीएफ is that you obey the exam logic. There is a logic behind UPSC asking a question again and again, repeating certain themes again and again. You go by that logic. Don't follofollow with your instinct कि आज ये पढ़ लेते हैं वो पढ़ लेते हैं. Randomness, chaos में नहीं पढ़ना है. Pick up a micro theme, complete a loop, and I'm going to teach you how to do that, right? Follow a rule-based system, right? And I'll keep explaining this. Like I said, UPSC syllabus is extremely abstract, right? The only clarity you will ever get is through micro themes. What is that clarity? That what is the frequency of these topics? It's like in इस पूरे syllabus में UPSC का सबसे favorite topics कौन से हैं? That's what micro theme is for prelims and mains. Now you can do this on your own. You can just sit down and figure out पिछले 30 15 10 सालों के PYQ, categorize them under actual topics and themes, and then prioritize them basis the frequency of questions. So one theme will become more important because उससे ज्यादा क्वेश्चन आए. That is what I mean by frequency of questions. जिस थीम से कम क्वेश्चन आए उसकी प्रायोरिटी आपके दिमाग में कम होनी चाहिए. Don't do that. We have already done that. We are the only one who have done that. So clarity syllabus बहुत abstract है. It will only come with micro theme. ठीक है? Once you have that, you can prioritize syllabus. You can actually approach syllabus in a certain way. ये पढ़ना चाहिए क्योंकि इससे क्वेश्चन आ रहे हैं. Now that is only 10% of it. ये पढ़ना चाहिए is the main sentence. Like how will you study? How will you cover? How will you test yourself? How will you make notes, approach mock tests, etc. and actually write the answers and improve, right? Deliberate improvement आपका होना चाहिए. And that is what I think almost 90% of the aspirant miss, right? Mains result just came. We have extremely good result from Smash Mains program. And one of the thing, and there are aspirants who couldn't make through. But honestly, when we try to understand and when we checked their जर्नी ऑफ प्रिपरेशन, वी रियलाइज कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बिल्कुल कंसिस्टेंटली माइक्रो थीम करे जा रहे हैं. अब उन्होंने बिल्कुल कॉन्फिडेंट बिल्ड कर लिया कि अगर इससे क्वेश्चन आएगा इस डायमेंशन में आएगा, आई एम नॉट गोइंग टू मिस इट. एंड देन देर आर किड्स एंड एस्पायरेंट जो कुछ दिन कर रहे हैं कुछ दिन नहीं कर रहे हैं, फिर वो वापस उसी केओस में चले जा रहे हैं. तो एक बार ट्रस्ट करके स्टिक विद दिस अप्रोच. आई एम टेलिंग यू, यू हैव a नियर परफेक्ट सर्टेनिटी टू क्वालिफाई द एग्जाम, प्रीलिम्स हो या मेंस हो. वी हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क बिहाइंड दीज पीडीएफ. ठीक है, तो एक प्रायोरिटाइजेशन बन जाएगा आपके अप्रोच करने में सिलेबस के कि क्या पढ़ना चाहिए पहले, क्या नहीं पढ़ना चाहिए. ठीक है, और वो एक वेग सिलेबस एक हाई प्रायोरिटी पूरी थीम में कन्वर्ट हो जाएगा. मतलब नाउ यू कैन एक्चुअली डिसाइड, यू कैन चेक योर वीकनेस. अगर एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम में आप वीक हो तो यू कांट अफोर्ड दैट, राइट? एंड दैट इज व्हाई आई एम गोइंग टू टेल यू दिस इज द सिंगल मोस्ट important question which will determine your question. Like I said, I actually checked the journey of aspirants जो मेंस में निकले हैं, जो नहीं निकले इस बार, जो निकल गए हैं, जिनकी पहले भी निकला हुआ है मीन्स, उनको बहुत क्लैरिटी है यार कि मतलब यहाँ से टॉपिक आ रहे हैं तो मैं यही पढ़ के ही जाऊंगा. आपको ये चीज 3-4 साल बाद एग्जाम देकर समझ में आएगी. वी आर सेइंग कि यू शुड अंडरस्टैंड दैट फ्रॉम द डे वन ऑफ योर प्रिपरेशन. योर डे जीरो ऑफ द प्रिपरेशन शुड बी लाइक दैट. सो प्लीज, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट विल डिटरमाइन योर सिलेक्शन इन दिस एग्जाम. ठीक है, नाउ फ्रॉम हेयर ऑन, वंस आई हैव एस्टेब्लिश द इम्पोर्टेंस, द लाइक इस इंडिस्पेंसिबल है माइक्रो थीम, इसके बिना प्रिपरेशन करना अभी बहुत प्रॉब्लमेटिक है. ठीक है, still if you have the PDF, which when I asked कि किस किस को माइक्रो थीम पता है, most of you know that, right? But you, all of you who have the PDF, who are aware of, you're still likely to make two fatal mistake in this exam even after you have the micro theme PDF. ठीक है, पहला, ओवरलुकिंग द की माइक्रो थीम. आप उस माइक्रो थीम को भी प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हो. लेट मी टेल यू हाउ. ये आपका मैक्रो सिलेबस है, ये आपका पूरा सिलेबस है, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं. पॉलिटी में 45 माइक्रो थीम है, ऐसे देख सकते हो आप. इट्स इन फ्रंट ऑफ यू ऑन योर लेफ्ट साइड. सोशल जस्टिस 2, साइंस टेक 33. इन पास्ट फ्यू ईयर्स these many, each syllabus has these number of micro themes. वो हमने कैटेगराइज कर दी. ठीक है, इन मेंस पॉलिटी में 106,
प्रीलिम्स में ऐसे दिया हुआ है क्वेश्चंस, दोज आर क्वेश्चंस, सो 106 क्वेश्चंस आर कैटेगराइज्ड अंडर 45 माइक्रो थीम्स, 295 क्वेश्चंस आर कैटेगराइज्ड अंडर एक्स वाई जी माइक्रो थीम। ऐसे करंट अफेयर्स की भी माइक्रो थीम वी हैव जस्ट लॉन्च्ड। ये आपका मैक्रो सिलेबस है, इससे आपको कुछ समझ में आएगा नहीं, ठीक है। इसको एक लेवल और ब्रेकडाउन ऐसे होता है। अब आपको समझ में आ गया कि यार पॉलिटी का जो सिलेबस दिया है उसको अगर मैं ब्रेक डाउन करूंगा तो आई कैन अंडरस्टैंड कि फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज से लुक एट द नंबर ऑफ माइक्रो थीम अंडर दैट 45 माइक्रो थीम। ये टॉपिक की प्रायोरिटाइजेशन हो चुकी है, शेड्यूल्ड पार्ट से नहीं आ रहा है, डीपीएसपी से एक क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से 8 क्वेश्चन है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से 8 क्वेश्चन है, फेडरलिज्म से 10 क्वेश्चन है। हाउ इन देर इज, सो ये आपको इमीडिएटली ये पॉइंट एस्टेब्लिश कर देता है विथ एविडेंस। इसको तो डिनाई भी नहीं किया जा सकता क्योंकि पीवाई क्यू से है, यूपीएससी का खुद ने बनाया हुआ है कि भाई मैं शेड्यूल पार्ट्स पे उतना टाइम नहीं लगा सकता। इट इज कंप्लीटली फाइन अगर मुझे वो समझ में भी नहीं आ रहा है या वीक है। मुझे पहले लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, फेडरलिज्म, ये सब के नोट्स बहुत अच्छे से करने हैं, उनके पीवाई क्यू सॉल्व करके देखना है कि क्या मैं अटेम्प्ट भी कर पा रहा हूँ कि नहीं। आप ऐसे सोच के देखो कि आप उस चीज को, लेट मी सिंप्लीफाई, व्हाई विल यू पुट योर हार्ड वर्क, एनर्जी, टाइम, एनीथिंग इन अ पार्ट ऑफ सिलेबस विच यूपीएससी हैज बीन रेयरली आस्किंग? उतनी पढ़ाई क्यों करनी है? सो लेट्स गेट बेटर एट पार्ट्स जहां पे यूपीएससी एविडेंस से बार बार रिपीट किया जाए। सो नाउ यू अंडरस्टैंड, दिस वाज योर मैक्रो सिलेबस, यू हैव ब्रोकन डाउन द सिलेबस इनटू सर्टेन थीम्स, ठीक है। आर वी, इज एवरीवन विथ मी? शुड आई रिपीट? यस, नो, ऑल गुड? यहां तक समझ में आया? वी जस्ट टुक द सिलेबस एंड वी डिवाइडेड दैट सिलेबस इनटू सर्टेन इंपॉर्टेंट माइक्रो थीम्स, एंड ये सब कुछ एक एविडेंस बेस्ड है, तो ये मेरा बनाया नहीं है किसी का, ये सब पीवाई क्यू है इसके पीछे, ठीक है। नाउ लेट मी गिव यू ओवरऑल आइडिया। ये प्रीलिम्स, there are only total 288 micro themes. It is the complete, it completes your syllabus of UPSC. Forget syllabus for a while. आप ऐसे सोचो, मुझे सुबह उठ के मेरा एक ही गोल है, देर आर 88 माइक्रो थीम्स, मुझे वो कंप्लीट करनी है, ठीक है। 288 माइक्रो थीम्स ऐसी है जिनसे मिनिमम तीन क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन और मोर देन 3 क्वेश्चन हैव बीन आस्क्ड, विच बेसिकली मीन्स इनकी फिर से आने की पॉसिबिलिटी एक्सट्रीमली हाई है। अगर आपको इसके नीचे जाना है कि मुझे 2 क्वेश्चन वाली भी करनी है जिनसे 2 क्वेश्चन आए हो, मुझे एक क्वेश्चन है वो भी करनी है, वो भी कर सकते हो आप। दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द प्लेटफॉर्म जो, और आपका पीडीएफ। बट एक्चुअली में जो आपको करनी चाहिए, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिकरिंग है, वो जिनसे 3 क्वेश्चन या 3 से ज्यादा क्वेश्चन आए, दैट सम टोटल इज 288, ठीक है। कंबाइनिंग टोटल, सो मेंस का यू हैव 177 माइक्रो थीम, दैट्स ऑल यू नीड टू कवर। प्रीलिम्स 111 माइक्रो थीम्स, एंड देयर आर 37 कॉमन माइक्रो थीम्स, ठीक है, जो शेयर्ड सिलेबस है प्रीलिम्स एंड मेंस का। बेसिकली आई रिपीट, वी हैव जस्ट 280 माइक्रो थीम्स जहां से 3 या 3 से ज्यादा क्वेश्चन आए, टोटल 177 इन मेंस, 111 इन प्रीलिम्स। इन 288 for 37 माइक्रो थीम्स आर कॉमन, क्योंकि यूपीएससी में प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस शेयर्ड होता है जैसे जीएस का सिलेबस है। ये पहला चीज है, हम ये गलती कर सकते हैं कि हम अपनी की माइक्रो थीम्स को ओवरलुक कर जाएं। हम शायद ऐसा सिलेबस का पार्ट पढ़ लें जो उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। ये हो सकता है, आप में से बहुत सारे लोग बिगनर हो, शायद आप दिस इज योर पॉलिटी का थिंग, राइट? शायद आप यूनियन एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दो फंडामेंटल राइट से या फेडरलिज्म से, ये हो सकता है। दिस इज एक्सेप्टेबल मिस्टेक, ये होता है, बट आज के बाद नहीं करना है, बिकॉज नाउ यू आर अ पार्ट ऑफ दिस सेशन। अब हमने आपको बता दिया ये नहीं करना है। तो ये हम पहली गलती कर सकते हैं, हम अपनी माइक्रो थीम को ओवरलुक कर सकते हैं, हम सीधे सिलेबस पे जा सकते हैं, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, एंड दिस इज वेयर एक्चुअली द सेशन, दिस इज व्हाट द सेशन इज अबाउट। अभी तक का तो आपको पहले से पता था। जब एक माइक्रो थीम, व्हेन यू पिक अप अ माइक्रो थीम, ओके, आई एम अवेयर कि भाई फेडरलिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कैसे पढ़ना है ये बता दो अब, ठीक है। दैट इज व्हाट आई विल आंसर नाउ। सो मिसिंग द डिजायर्ड डेप्थ ऑफ कवरेज, उस फेडरलिज्म में कहां तक पढ़ूं, कहां से पढ़ूं, what dimension should I cover, etc. Right? And then there is a loop. Loop basically, I'll explain. So having a PDF is just 10%. There's a complete circle that you need to cover to call कि ये वाली माइक्रो थीम, टू अनाउंस टू द वर्ल्ड एंड टू योरसेल्फ कि भाई मैंने ये वाली माइक्रो थीम खत्म कर ली है, ठीक है। लेट्स अंडरस्टैंड दैट। पहले प्रीलिम्स का देखते हैं, व्हाट इज द प्रीलिम्स का लूप, फिर मेंस पे आएंगे। लाइक आई सेड, देयर आर 111 माइक्रो थीम्स इन प्रीलिम्स, वी ऑल नो दैट नाउ। वी हैव लॉन्च द प्रीलिम्स का माइक्रो थीम का डॉक्यूमेंट, आई शेयर द लिंक इफ यू ऑलरेडी डोंट हैव इट, ठीक है। नाउ अराउंड 11 सब्जेक्ट्स हैं प्रीलिम्स में, इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ऐसे करके जो भी सिलेबस में दिया हुआ है, ठीक है। यू हैव अराउंड 17 ईयर्स ऑफ पीवाईक्यू एनालिसिस डन इन दिस, पूरा अपडेटेड है 2025 तक। एंड देन दिस पीडीएफ इज अवेलेबल, राइट? दिस यू कैन सी ऑन योर लेफ्ट साइड, दीज आर द टॉपिक्स। सो पॉलिटी में 31 है, मतलब सेम ये सेम माइक्रो थीम से डिवाइडेड है। पॉलिटी में 31 है, आर्ट एंड कल्चर 30, गवर्नेंस 11, ये सब आपके पास अवेलेबल है, यू हैव द पीडीएफ, इफ नॉट आई गिव यू, बट प्लीज अंडरस्टैंड दिस इज हाउ इट इज डिवाइडेड, सो यू कैन अंडरस्टैंड कि सब जैसे इंटरनेशनल रिलेशन में उतना क्यों ध्यान देना है भाई अभी,
You will go with polity, economy, geography. Look at the number of micro themes there, right? So एक पहला बेसिक तो आपका यहीं पे ही, like you are clear. Now once that is done, you have checked that, you have to have a daily target. ठीक है? What, let's say you have this x number of micro theme prelims में 111 या 183, अगर आप more number of questions में जा रहे हो कि भाई दो क्वेश्चन भी रिपीट हुए, तो then it is 183, number is 183. You have to have a daily target of picking up a micro theme. You wake up and you pick up, let's say, fundamental rights and duties, या ज्योग्राफी में कोई माइक्रो थीम आप उठा लो. What you are going to do, you are going to attempt the PYQs of those micro themes. ठीक है? Now you don't need to go anywhere, इसी PDF में ही PYQs हैं. So don't go and you don't need to move ahead of anything. In the same PDF of prelims micro theme, there are PYQs. So you go and attempt PYQ. What do you do? Once you have covered your basic syllabus, मतलब आप जो भी पढ़ रहे हो स्टैंडर्ड बुक से स्टैटिक में, आप अपनी PYQ की एक्यूरेसी चेक करो. अगर एक्यूरेसी 80%, 10 क्वेश्चंस में से 8 सही हो रहे हैं, देन यू कैन मूव अहेड टू नेक्स्ट माइक्रो थीम. ठीक है? राइट दीज थिंग्स डाउन, यू कैन मूव अहेड टू द नेक्स्ट माइक्रो थीम. अगर 80% से नहीं हो रहे हैं, देयर इज समथिंग वेरी रॉन्ग विद द वे यू आर कवरिंग योर स्टैटिक सिलेबस. आपके कंटेंट में ही प्रॉब्लम है. या तो आपसे ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हो रहे हैं प्रीलिम्स में, या तो आपको नॉलेज ही नहीं है उस टॉपिक का. दीज आर द ओनली टू केसेस. और इट कुड बी लाइक यू हैव द नॉलेज, यू रेड इट, बट आपको रिकॉल नहीं हो रहा है, राइट? यू आर नॉट एबल टू रिमेंबर, सो रिवीजन में इशू है. इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता. या तो आपको आता नहीं है, आता है तो याद नहीं आ रहा है, आता भी है याद भी नहीं आ रहा है, फिर भी क्वेश्चन गलत हो रहा है बिकॉज एलिमिनेशन नहीं हो रहा है. सो इट्स लाइक 50% गेस वर्क. एलिमिनेशन में प्रॉब्लम है, लॉजिक लगा के आप आंसर पे नहीं आ. इसके अलावा देयर इज नो, दीज आर द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ऑप्शन. इसके अलावा कुछ ऑप्शन है ही नहीं. देयर इज नो अदर रीजन एक्सेप्ट यू आर वर्किंग अगेंस्ट योरसेल्फ. वो तो आप करोगे नहीं, जानबूझ के थोड़ी ना गलत करोगे. सो अटेम्प्ट, pick a micro theme, attempt PYQ in that micro theme. If you are having 80% accuracy of those PYQs, you can call कि ये micro theme से मेरे को बनता है, ये questions मेरे बन रहे हैं. ठीक है? You can move ahead. Let's understand more. एक वीकली प्लान, एंड आई गिव यू द वीकली प्लान. एक वीकली प्लान रखो कि हफ्ते में इतनी माइक्रो थीम करनी है, ऐसे करना है, राइट? कोई गेस वर्क नहीं कि कहां से कुछ भी उठा लो एटसेट्रा, वो सब नहीं. ठीक है? एक, सो दैट एट द एंड ऑफ द डे आप समराइज कर सकते, मंथ आप समराइज कर सकते हो कि मैंने पॉलिटी से इतनी कर ली है, ज्योग्राफी से इतनी कर ली, इकोनॉमी से इतनी कर ली. खुद को अकाउंटेबल रख पा रहे हो आप. हमको, हमारा एम है टोटल 288 माइक्रो थीम्स को हिट करने का. तो हमको ये पता होना चाहिए कि वट एवर द नंबर ऑफ मंथ्स आर लेफ्ट फॉर मी फॉर दिस एग्जाम, मैं एक महीने में कितनी कवर कर रहा हूँ. सो वो जो आप हर एक PYQ को आप पढ़ रहे हो, उसकी मास्टरी आप डेवलप कर रहे हो, यू हैव टू नो कि भाई एग्जाम के पहले तो खत्म हो जाएगा कि नहीं, राइट? समटाइम्स यू विल आल्सो नीड लॉट ऑफ वैल्यू एडिशन एंड रिवीजन एटसेट्रा. I'll repeat again, having that PDF is just 10% of the game. It solves nothing. It will not bring any change in your preparation. Let's understand the other 90%, right? This is the timetable I was talking about. So look at geography. मान लो आप 16 जनवरी मंडे मॉर्निंग आपने एक ज्योग्राफी की रिवर सिस्टम की माइक्रो थीम पिक करी है. ठीक है? Let's do that. This is the uh, wait. This is the river system का PYQ. I'll repeat again if you have missed. Let's say I'm giving you an actual example कि मैं कैसे पढ़ूंगा या आपको कैसे पढ़ना चाहिए. Okay, focus here. Let's say this is the first thing. We decided कि चलो भाई ज्योग्राफी की रिवर सिस्टम से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं. That is their micro theme. Let's cover. Let's check the PYQ from river system. These are the kind of PYQs. ठीक है? जो जो स्टार आपको सेम दिख रहे हैं, वो सेम नेचर का क्वेश्चन है. दिस इज व्हाट दीज आर कॉल्ड डायमेंशंस. एवरी माइक्रो थीम हैज अ डायमेंशन. हर माइक्रो थीम के अंदर जब यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वो सेम क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा ना, सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा. रिवर सिस्टम में वो कुछ भी पूछ सकता है. कई बार वो रिवर सिस्टम में कोई ज्योग्राफिकल फिनोमेना पूछ लेगा, कई बार रिवर के अराउंड कोई डैम पूछ लेगा, कई बार रिवर के अराउंड कोई नेशनल पार्क पूछ लेगा, कई बार तीन चारों चीजों को मिला के पूछ लेगा. So the nature of question is still different, right? So you see the similar star, same star are the same dimension. Just give it a read. Just quickly glance ki why they are same. ठीक है? Now let's understand. Once you have picked up a river system, you understood the dimension under each PYQ. ठीक है? Once you have done that, these are the dimensions. I've written the dimensions also. कई बार वो आपसे रिवर की ओरिजिन पूछ लेगा, ट्रिब्यूटरीज पूछ लेगा, ईस्ट है वेस्ट है, रिवर के अराउंड लेक्स और डैम्स पूछ लेगा, उसमें भी नुआंस जाके पूछ लेगा, फ्रेश वाटर, आर्टिफिशियल एक्सेट्रा, ग्लेशियर्स पूछ लेगा, वाटरफॉल पूछ लेगा. नाउ लुक एट, वंस यू हैव सीन दिस, लुक एट द PYQs अगेन. स्टार वाले PYQ देखो. नाउ यू अंडरस्टैंड. किसी किसी में लेक पूछ रहा है रिवर सिस्टम में, किसी में डैम पूछ रहा है, किसी में फ्रेश वाटर पूछ रहा है, किसी में बोल रहा है ईस्ट फ्लोइंग है, वेस्ट फ्लोइंग है. यस और नो, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाउ टू अंडरस्टैंड द डायमेंशन. Read this and now look at the PYQ again. Now you can clearly differentiate हर PYQ सेम नहीं है.
even under a micro theme there are different kinds of PYQ, and I need to know those dimensions. Right? Yes or no? If you understood this point, this is the step one of completing a loop. You need to segregate your PYQ under a dimension कि भाई किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं हर माइक्रो थीम में, जिससे कि मेरे सारे बेसिस कवर हो. यस, नो, इज इट टू हार्ड टू अंडरस्टैंड? बी रिस्पॉन्सिव. नो सर, डिडंट अंडरस्टैंड. अभिराम, गॉट इट. ओके. ओके. तो हमने सबसे पहले एक माइक्रो थीम पिक करी है, फिर हमने उसके पीवाईक्यूज देखे हैं, एंड हमने उसके डायमेंशन समझने की कोशिश की है कि एक सिमिलर नेचर के पीवाईक्यू कैसे है. ठीक है. लेट्स अंडरस्टैंड मोर. नाउ दिस इज अगेन सर्टेन पीवाईक्यूज इन फ्रंट ऑफ यू, और वो हमारा लेवल वन है. रीड द पीवाईक्यूज. क्या लग रहा है? व्हाट इज द सिमिलर थिंग अबाउट देम? मेरे को एक सेंटेंस में आंसर दो. व्हाट इज द सिमिलर थिंग? व्हाट इज द नेचर ऑफ क्वेश्चन हियर? Just ऐसे glance करो all the PYQs. What is the similar thing about those PYQ? If you have to group them under a category, किस कैटेगरी क्या बोलोगे उस कैटेगरी को? This is a river system micro theme. रिवर फ्लोइंग ओरिजिन. ऑसम. समझ रहे हो भाई तुम लोग? तो ये हमारा लेवल वन है. अब आप समझ चुके हो कि जब भी पीवाईक्यू देखना है तो मुझे इस कैटेगरी में डालना है, उसका डायमेंशन समझना है. ऑसम. अब हम आते हैं लेवल टू पे. लेवल टू में क्या होता है कि उसी रिवर में वो कोई और डायमेंशन या कुछ और फिनोमेना डाल देंगे. वो बोल देंगे कि मेरे को जोग्राफिकल फिनोमेना. अब जस्ट लुक एट दीज पीवाईक्यूज. कोई कहीं पे बोलेगा कि ईस्टवर्ड फ्लोइंग है तो उसमें यू टर्न हो रहा है. कुछ भी फिनोमेना डाल देंगे. लाइक दे विल नॉट जस्ट आस्क द ओरिजिन ऑफ इट, बट दे विल आस्क सर्टेन मोर थिंग्स. तो जैसे इसमें देखो, गल्फ ऑफ कच्छ में जा रहा है, कौन सी ट्रिब्यूटरीज है, मार्शी लैंड के अराउंड तो नहीं है. इसमें देखो टर्न्स के बारे में लिखा हुआ है, उसमें भी नुआंसेस हैं. अगर आप ऑप्शंस में देखो कि जियो टेक्टोनिक डिस्टर्बेंस इन द टर्शियरी फोल्डेड माउंटेन्स है. राइट? तो ये ट्रिवियाज है, ये फैक्चुअल नॉलेज है, ये एक अलग टाइप का पीवाईक्यू है. हमारी, प्लीज अंडरस्टैंड, हमारी थीम अभी रिवर सिस्टम ही है. हमने एक थीम पिक करी थी, उसके अंदर हमने पीवाईक्यू देखने शुरू करे, जो कि मेरी माइक्रो थीम की पीडीएफ में ही है. जब मैं पीवाईक्यू पे आया तो मैंने देखा कि यार व्हाट इज द नेचर ऑफ पीवाईक्यू, कौन से किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये लोग. ठीक है. तो मुझे पता चला इस टाइप के कैटेगरीज मैं बना सकता हूँ. ठीक है. ये मेरे डायमेंशंस कवर हो रहे हैं. अभी तक आ गया समझ में? एक और देख लो. लुक एट दिस. चेक दिस. This is a completely different dimensions. It talks about the tributaries of a river. से forget river now. Forget origin. Origin पूछ ही नहीं रहे. अब वो सिर्फ tributaries के बारे में बात कर रहे हैं. दिख रहा है? And ऐसे कई क्वेश्चन है. I've just probably taken few examples, but you can. I'm trying to persuade you towards कि हर PYQ को सेम मत ले लेना. मतलब completely different चीज है. जब हमने एक डायमेंशन समझ लिया है, नाउ वी कैन ऑल एग्री दैट हर डायमेंशंस को कवर करने के लिए भाई पढ़ाई का तरीका अलग होगा. मैं सिर्फ रिवर सिस्टम पढ़ के बैठ जाऊं, इंडिया में इतनी रिवर है, क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होगा. भाई रियलिटी ये है आपके सामने. आप देखो कितने अजीब से क्वेश्चन पूछ रहा है यूपीएससी. आप ऐसे थोड़ी हो सकते हो बस कि अच्छा सिविल्स दिल्ली ने बोला है रिवर सिस्टम माइक्रो थीम पढ़ लो, इंडिया का मैप ले आता हूँ, सारी सारी रिवर्स पढ़ लेता हूँ. लुक एट हाउ फार विल बी योर एक्चुअल प्रिपरेशन फ्रॉम व्हाट यूपीएससी इज आस्किंग. कंप्लीट गैप. तो वो नहीं करना. इसलिए पीवाईक्यू से स्टार्ट करके डायमेंशन समझना है, सो दैट यू आर क्लोजेस्ट टू व्हाट यूपीएससी इज डिमांडिंग. वहां से शुरू करेंगे प्रिपरेशन. सारे डायमेंशन समझ लेंगे, अब हम पढ़ाई शुरू कर रहे हैं. सो नाउ व्हाट हाउ वी सॉल्व इन आवर प्रोग्राम्स एक्सेट्रा इज द फ्लैश नोट्स. फ्लैश नोट्स को बनाया ही पीवाईक्यू के बेसिस पे है. हमें पता है कि यूपीएससी ये सारी चीजें पूछ रहा है, तो हमने फ्लैश नोट्स में पहले से ही वो चीज़ है. ये दिस इज कॉल्ड सुपर मैप्स. दिस इज वन ऑफ द मैप्स वी वी क्रिएटेड. तो आप पूरा रिवर सिस्टम देखोगे तो आप देख सकते हो कि लेट मी जूम इट. आप देख सकते हो कि सिर्फ रिवर्स नहीं है, उसके अराउंड सेंचुरी के बारे में लिखा है, लेक्स के बारे में लिखा है, किस डायरेक्शन में ये है, किस ओशियन में मिल रहा है वो लिखा है. सो देर आर, मतलब ये यहाँ पे है, यू कैन सी हेयर विथ ईच सिंबल. यू कैन सी कोई यूनेस्को साइट तो नहीं है उस रिवर के बाजू में. तो 10 जगह से नहीं पढ़ना है, वन सुपर मैप इन फ्लैश नोट्स. सारा यूपीएससी का रिवर सिस्टम का डायमेंशंस कवर हो गया. डिड यू अंडरस्टैंड दिस व्हाट आई सेड, द बेसिस व्हिच वी मेड फ्लैश नोट्स? या आपके भी अगर आप नोट्स बना रहे हो तो ऐसे ही बनने चाहिए. दैट्स व्हाट आई मीन. योर नोट्स कैन नॉट बी जस्ट गंगा इस तरफ बहती है हो गया. भाई नहीं पूछ रहा यूपीएससी वो. दैट्स नॉट व्हाट दे आर आस्किंग. ठीक है. तो एक्सट्रीमली कंटेक्चुअल नोट्स होने चाहिए अगर आप खुद भी बना रहे हो तो. अदरवाइज जस्ट गेट द फ्लैश नोट्स. ठीक है. हमने वो कर दिया. दीज आर फ्लैश नोट्स. ठीक है. चेक ये पूरा रिवर सिस्टम, क्योंकि माइक्रो थीम है, आपके लेफ्ट साइड पे देखिए
सारी रिवर्स के बारे में लिखा है, किस स्टेट से जा रही है, क्या कहाँ जा रही है, पूरा शुरू से ही लिखा हुआ है कि रिवर सिस्टम रिमेन्स द फ्रिक्वेंटली आस्क्ड थीम इन यूपीएससी। सोर्सेज लिखे हैं, ओरिजिन लिखा है, कोई सा अगर वहां पे कोई कंजर्वेशन का प्रोजेक्ट है तो वो लिखा है, कोई डैम है उस रिवर पे तो वो लिखा है, कोई सिटी है तो लिखा है, नेशनल पार्क लिखा है। द आइडिया इज, अगर आप अपने रिवर सिस्टम माइक्रो थीम के नोट्स बना रहे हो तो ऐसे ही बनाना, इससे नीचे कुछ भी करोगे तो मुश्किल है भाई। मतलब आई एम क्लियरली टेलिंग यू, बिकॉज चेक द यूपीएससी क्वेश्चंस, ठीक है, दैट इज द लेवल दे आर गोइंग। ठीक है, सो नाउ हियर इज द थिंग, वंस यू हैव चेक्ड द सोर्स, वंस यू हैव चेक्ड द डायमेंशंस, वी नीड टू बी अवेयर कि यार इसी डायमेंशंस के मेरे को आंसर करने हैं। एंड नाउ फॉर दैट यू हैव दीज फ्लैश नोट्स। सो वंस यू हैव दैट, नाउ आई वांट यू टू मूव ऑन टू सम अदर डायमेंशन। सो लेट्स से जब आपने ये क्वेश्चंस कर लिए हैं, let me take you back to here. These are the questions that you have checked. You have checked these questions. You have categorized them under a theme, etc. ठीक है। ऐसे भी होगा कि कई क्वेश्चंस आपको, मतलब देर आर सर्टेन क्वेश्चंस जो यूपीएससी बियॉन्ड स्टैंडर्ड बुक्स या बियॉन्ड जो आप सोर्सेज हैं, रेफरल है, वहां से आप मतलब वहां से कवर नहीं कर सकते हो, राइट। तो उसके लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए, बिकॉज यू हैव अंडरस्टूड कि यूपीएससी डैम के बारे में पूछ सकता है, ओरिजिन के बारे में पूछ सकता है, नेशनल पार्क के बारे में पूछ सकता है। व्हाट इफ कल को कोई और इंटरनेशनल एस्पेक्ट पूछ ले उस पर, कोई स्टेट्स की किस स्टेट से निकलती, कहाँ से निकलती, ये पूछ ले। किस सिटीज, इंपॉर्टेंट सिटीज से निकलती है, ये पूछ ले। कौन से नेशनल पार्क से निकलती है, उनका नाम बताओ, ये पूछ ले। कुछ भी पूछ ले, कोई कोई प्रोजेक्ट है, इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है तो वो पूछ ले। अगर वो कोई न्यूज में है तो उससे पूछ ले। होगा क्या, वंस यू हैव अंडरस्टूड द डायमेंशंस इन द पीवाईक्यूज, योर ब्रेन विल स्टार्ट प्रिडिक्टिंग कि यार ऐसा तो वो पहले पूछ चुका है, शायद अगली बार ये सब पूछ ले। That is what going to happen. That's what I wrote कि what is next for UPSC, your brain will start predicting questions। यार ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, I should be prepared for these two things। ये भी पूछ सकते हैं वो। And those answers you'll again find in flash notes, वो भी वहां पे हैं, they are available there। ठीक है। सो अब पूरा जैम पैक्ड है, कहीं से लीकेज नहीं है आपकी प्रिपरेशन में, आपने कर लिया है, ठीक है, मतलब रिवर सिस्टम हो गया है। सो आई विल समराइज एवरीथिंग। योर लूप इज कंप्लीटेड फॉर रिवर सिस्टम, ऐसे पढ़ना है। इससे नीचे कुछ भी करोगे प्रॉब्लम है, नहीं तो आप यूपीएससी से दूर जा रहे हो। ऐसे करके इसी को बार बार रिपीट करते रहो और आपकी सारी की सारी प्रीलिम्स की माइक्रो थीम खत्म है। स्टार्ट, पिक अ माइक्रो थीम, सॉल्व पीवाईक्यूज, टारगेट 80% एक्यूरेसी, उससे कम है पढ़ाई में प्रॉब्लम है, कंटेंट में प्रॉब्लम है, या फिर आपको एलिमिनेशन नहीं आ रहा है, या तो आपको एमसीक्यू एप्टीट्यूड नहीं है, विच इज फाइन, इट टेक्स टाइम, बट दैट इज द टारगेट। वो बेयर मिनिमम थ्रेशोल्ड है। 80% बन रहे हैं क्वेश्चन पीवाईक्यू से, आगे बढ़ जाओ, यू कैन मूव टू द नेक्स्ट माइक्रो थीम। पढ़ना कैसे है, सबसे पहले पीवाईक्यू देखने हैं, उनके डायमेंशन समझने हैं कि व्हाट इज द नेचर ऑफ क्वेश्चन, अलग अलग कैटेगरी में देखो कौन कौन से पूछ रहे हैं। फ्लैश नोट्स उठाओ, वहां से पढ़ना शुरू करो, ठीक है, उस टॉपिक को पढ़ो। जब आप डायमेंशन समझने लगोगे तो आप अगले क्वेश्चन भी प्रेडिक्ट करने लगोगे, यार यूपीएससी ऐसे पूछ रहा है, वो भी फ्लैश फ्लैश नोट्स में है, कहीं नहीं जाना है, दैट इज ऑल्सो देयर इन द फ्लैश नोट्स। ठीक है। उसके बाद अपने मॉक टेस्ट देते रहो और अपनी प्रैक्टिस आगे करते रहो। कंप्लीटली वाटर, यहाँ से अब कुछ लीक नहीं होना है इससे। जैम पैक प्रिपरेशन, कोई फॉल्टी लाइंस इसमें नहीं है, सब सही चल रहा है, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाओगे रिवर्स सिस्टम में, क्योंकि आपने वो किया है जो यूपीएससी चाह रहा है, उसी के क्वेश्चन से समझे कौन से टॉपिक फेवरेट है, उसी के, कुछ भी रैंडम चीजें ऐड नहीं की हैं, उसी के पीवाईक्यू से डायमेंशन समझे, उसी के नोट्स पढ़े हैं, और उसी के नोट्स में और क्या आ सकता है, क्या और वो पूछ सकता है, वो भी कवर कर लिया है फ्लैश नोट्स में। बस व्हाट इज लेफ्ट इज योर मल्टीपल प्रैक्टिस, तो आप मॉक टेस्ट देते रहो, और उसमें अगर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन रहा है, अपनी एक्यूरेसी मेंटेन करते रहो, बेसिकली प्रैक्टिस है, कॉन्फिडेंट बनता रहेगा। आप मतलब you'll नॉट फील न्यू ऑन द डे ऑफ एग्जाम, राइट। सो यस और नो, जस्ट राइट इन द चैट कि आपको समझ में आया रिवर सिस्टम को कैसे तरीके से प्रिपेयर करना है। मतलब रिवर सिस्टम इज जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है, वो बस एक एग्जाम्पल है, सारी माइक्रो थीम ऐसे ही करनी है। दैट इज योर प्रीलिम्स माइक्रो थीम। आई एम रिकॉलिंग हाउ आई स्टार्टेड दिस सेशन। अपनी इंस्टिंक्ट से पढ़ाई करना बंद कर दो दोस्तों, ओवे द एग्जाम लॉजिक। दैट इज व्हाट आई मेंट बाय, कि एक सिस्टम होता है पढ़ाई करने का, रूल होते हैं उस सिस्टम के, उसी को फॉलो करो। ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, वैसे ही पढ़ो, अपने मन मर्जी से इधर उधर नहीं पढ़ना है यार। कीप योर इमोशंस असाइड, बिकम रूथलेस विथ दीज थिंग्स, ठीक है, कि एग्जाम का एक लॉजिक है यार, उससे ही पढ़ूंगा मैं, ठीक है। ये हमने प्रीलिम्स का समझा था, अगले 5 6 10 मिनट में मैं आपको मेंस का लूप खत्म करना कैसे समझा देता हूँ, ठीक है। लाइक आई सेड, देर आर 177 माइक्रो थीम्स इन मेंस, ठीक है। इफ यू गो विथ 3 और मोर क्वेश्चन आस्क्ड उस फ्रिक्वेंसी के बेसिस पे, I'll repeat the same thing. If you have the mains micro theme PDF, nothing has changed in your preparation just because you have the PDF. There is a way you will cover a topic, ठीक है। You are likely to make 2 mistakes, fatal mistakes। आप मेंस की माइक्रो थीम को ओवरलुक कर दोगे। इट्स द सेम अप्रोच आई एम टेकिंग, ठीक है। 288 माइक्रो थीम्स, आपके जो भी GS 1 2 3 4 GS 1 2 3 के सब्जेक्ट्स हैं, प्रॉब्ली अराउंड 15 16 सब्जेक्ट, जनरली 22, बट अभी मैंने एथिक्स हटा दिया है।
सो ऑलमोस्ट 15 जीएस के सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हो जो कि मेंस स्पेसिफिक माइक्रो थीम में डिवाइड हो जाएंगे. सो वी आर अवेयर ऑफ दैट नंबर नाउ, लाइक प्रीटी मच. जस्ट फॉर द एग्जांपल, दिस इज हाउ इट लुक्स. ये GS1 का सिलेबस है. राइट साइड, लेफ्ट साइड पे राइट, वो यूपीएससी का दिया हुआ है. राइट साइड पे पीवाईक्यू का एनालिसिस है. जो बिल्कुल राइट में है, जो टोटल लिखा है, वो हमको हेल्प करता है फ्रीक्वेंसी डिसाइड करने में कि कौन सी, कितने पीवाईक्यू आए, कौन सी माइक्रो थीम को प्रायोरिटाइज करने हैं. This is your well, that was just an example. So do not overlook the key micro theme. Key micro theme means a theme, a part of syllabus which has been asked by UPSC again and again in different format etc. सेम क्वेश्चन कभी नहीं आएगा. दैट इज व्हाट वी आर कॉलिंग की माइक्रो थीम. वो गलती मत करना. रैंडम कहीं से भी कुछ भी सिलेबस उठा लिया, लीनियर मत पढ़ना यूपीएससी को. ठीक है, प्रायोरिटाइज करके सिलेबस. एंड द सेकंड थिंग इज डेप्थ ऑफ कवरेज. मतलब ठीक है भाई, मैंने एक जैसे अभी रिवर्स सिस्टम देखा था, मैंने एक थीम उठा तो ली है, बट मैं कंप्लीट कैसे करूं, राइट? सो बिफोर, या सो लेट्स से इन द जीएस पेपर 2 देयर इज अ माइक्रो थीम कॉल्ड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. ठीक है, उसका एग्जांपल ले लेते हैं. जब मैंने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की माइक्रो थीम मैंने समझ ली कि इट्स लाइक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, मैंने प्रीलिम्स के माइक्रो थीम को कवर करने के लिए सबसे पहले क्या किया था, पीवाईक्यू उठाए थे और उसके डायमेंशन समझे थे. यस, सेम अप्रोच में यहाँ ले रहा हूँ. मैंने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट माइक्रो थीम उठाई, मैंने उसके पीवाईक्यू देखे. फॉर योर ईज मैंने कुछ पीवाईक्यूज लिख दिए हैं यहाँ पे. सो ये जो आप पढ़ रहे हो ये एक्चुअल पीवाईक्यूज है. ठीक है, नाउ अंडर दैट हर एक पीवाईक्यू से कुछ कुछ D1 D2 इज डायमेंशन, डी इज डायमेंशन. इस पीवाईक्यू में 3 डायमेंशन पूछ रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, under a local self-government micro-theme, first question is, the local self-government system in India has not proved to be effective instrument of governance. Critically examine the statement, give your views, etc. to improve the situation. ठीक है, अब इस break it down to there are 3 things they are asking in reality. ठीक है, अब जब तक आपको वो समझ में नहीं आएगा, आप random by default कुछ भी लिखने लगोगे. Please understand the logic behind why they're asking. That one single question is demanding three things from you. One, कौन कौन से challenges हैं जो local self government को फेस करने पड़ते हैं अपनी गवर्नेंस को बेटर करने में. सेकंड, कौन कौन से पॉजिटिव चेंज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ने लाए हैं, क्योंकि उसने डायरेक्टिव क्या है, क्रिटिकली एग्जामाइन. फॉर अगेंस्ट दोनों एग्जामाइन है ना, दोनों लिखना पड़ेगा, इसलिए पॉजिटिव भी लिखना पड़ेगा. पहले में आपने नेगेटिव मतलब चैलेंजेस लिख दिए, सेकंड में पॉजिटिव, और थर्ड में इंप्रूव कैसे करना, बिकॉज दैट इज व्हाट दे आर आस्किंग, राइट? लास्ट में देखो ये, गिव योर व्यूज टू इंप्रूव द सिचुएशन. जब तक आप इस क्वेश्चन को 3 डिमांड में ब्रेक नहीं करोगे, द मोमेंट यू हैव ब्रोकन डाउन द क्वेश्चन इनटू 3 डिमांड्स, इमेजिन हाउ यू विल मेक द नोट्स. अब आप तीनों तरीके से नोट्स बनाओगे, या आप कोई भी बुक भी पढ़ोगे तो ये तीनों पॉइंट ध्यान रखोगे, यार यूपीएससी ये 3 डायमेंशन तो चेक कर ही रहा है हर पीवाईक्यू में. आपकी प्रॉब्लम ये हो सकती है, आप गलतियां ये करोगे कि आप वो पीवाईक्यू को लिखोगे और सीधा अपना लिखना चालू कर दोगे. दैट्स नॉट हाउ, वो पीवाईक्यू फिर से आएगा ही नहीं. इट्स सेम क्वेश्चन विल नेवर कम. उसका आंसर देके आप क्या करोगे? द आइडिया इज टू लर्न फ्रॉम इट, लाइक व्हाट इज द इनसाइट आई कैन ड्राइव फ्रॉम इट, सो दैट थोड़ा एग्जाम में प्रिडिक्टेबल बना दूं, राइट? तो सरफेस लेवल अंडरस्टैंडिंग रखोगे ना, जैसे मैंने लिखा भी है, तो मेंस लेवल के आंसर लिख नहीं पाओगे. फॉर ईच क्वेश्चन, फॉर योर एग्जाम, फॉर टू गिव यू सम एग्जांपल, आई ब्रोकन डाउन देम इनटू डिमांड्स. हर पीवाईक्यू का डिमांड है. ऐसे ही हमने रिवर सिस्टम को समझते टाइम प्रीलिम्स के लिए किया था. ठीक है, द मोमेंट यू हैव अंडरस्टूड द डिमांड, दिस इज हाउ यू क्लोज द लूप. फर्स्ट, चूज अ सब्जेक्ट, पिक अ माइक्रो थीम. यहाँ पे मैंने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट उठाई थी. वहां पे उसके डायमेंशंस ब्रेक डाउन करो. ठीक है, और पीवाईक्यूज अटेम्प्ट करो जैसे प्रीलिम्स में भी किया था. यहाँ पे यू कैन अटेंड स्मैश पीवाईक्यू के लेक्चर, पिछले 10-15 साल के सारे पीवाईक्यूज को ऐसे ही डिमांड और थीम्स में ब्रेक डाउन करके एक्चुअल आंसर्स दिखा के लेक्चर्स हो रहे हैं. शुभम सर इज टेकिंग देम. ठीक है, नहीं, इफ यू कांट डू दैट देन यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन, बट कर लो वो. लाइक उसके बिना गेम नहीं है दोस्त. यू हैव टू ब्रेक डाउन ईच क्वेश्चन इनटू डिमांड्स. वंस यू हैव ब्रोकन देम डाउन, जैसे प्रीलिम्स में फ्लैश नोट से लिया था, मेंस के लिए एक्सपेक्टेड नोट्स है, अवेलेबल है. पीडीएफ भी फ्री में अवेलेबल है, ओआरएन में रहते हो तो वहां से ले लो, वट एवर वर्क्स फॉर यू. ठीक है, इसमें कोई बहाना नहीं है. सो टेक दोज एक्सपेक्टेड नोट्स. उससे क्या होगा, सारे डायमेंशंस जो आपने पीवाईक्यू के ब्रेक डाउन किए हैं, हर एक डायमेंशंस का आंसर है, कंटेंट है, तो हो गया, पढ़ लिया आपने वो. उसके अलावा भी जो यूपीएससी पॉसिबली पूछ सकता है वो भी है. सो प्रेडिक्टेबिलिटी भी मेंटेन्ड है, जैसे हमने प्रीलिम्स में मेन करा था कि भाई ये 4 तो पूछ चुका है यूपीएससी, शायद 2 और डायमेंशंस पूछ ले, उसका कहाँ से पढ़ूंगा, है भाई एक्सपेक्टर में है. ये स्टैटिक हो गया. पर कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं GS2 और 3 में जो करंट अफेयर्स से पूछ लेते हैं, राइट? तो उसके लिए बर्निंग इशू मैगजीन है, वो भी फ्रीली अवेलेबल है, पीडीएफ है, नहीं चाहिए तो ओआरएन में ले लो, प्रिंट चाहिए तो. ठीक है, इसमें भी कोई बहाना नहीं है. सो आपका करंट दोनों जगह एक हो गया है. यूपीएससी ने जो भी डायमेंशन पूछे हैं या पूछ सकता है पॉसिबली, एक जगह है. इतनी क्लैरिटी से अभी हम चल रहे हैं. ठीक है, इतना इनफ नहीं है, सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, टेस्ट लिखने पड़ेंगे. तो या तो पीवाईक्यू के लिखो, या तो फिर सारे डायमेंशंस कवर करने हैं, हर एक माइक्रो थीम
पढ़ने के बाद उस माइक्रो थीम के टेस्ट देने हैं, तो फिर वी डू स्मैश मीन्स। यू कैन, कुछ बच्चे होंगे जो स्मैश मीन्स में हो सकते हैं यहाँ पे, दे हैव बीन, एंड वी हैव फैंटास्टिक रिजल्ट दिस टाइम फ्रॉम स्मैश मीन्स, जो कल परसों रिजल्ट आया, तो आप उसके टेस्ट लिख लो, इवेल्यूशन कराओ, मॉडल आंसर उठाओ, जो भी गैप्स हैं, जो आपने पढ़ा था फिर भी नहीं लिख पाए, उस मॉडल आंसर्स का जो ओरिजिनल पॉइंट आपको, जो आपके दिमाग में नहीं आया लिखते टाइम, उसको अपने नोट्स में जोड़ो, जहां पे आपने एक्स फैक्टर और बर्निंग इशू को जोड़ा है, उसी नोट्स में लिखो। आइडियली इट शुड ऑल कंबाइन टू अ वन पेज नोट्स। अपनी कॉपी लाओ, अपने नोट्स लाओ, और मेंटर के सामने बैठ जाओ। पीटीडीएस पोस्ट टेस्ट डिस्कशन, कि सर ये मैंने माइक्रो थीम पढ़ी थी, ये मैंने डायमेंशन से, एक्स फैक्टर और बर्निंग इशू से नोट्स बनाए थे, इस तरीके का मैंने आंसर लिखा है, मुझे बता दो और स्ट्रक्चर कैसे इंप्रूव करना है, और नए डायमेंशंस कैसे लिखने हैं, और इसको एनरिच्ड आंसर कैसे लिखना है, और इसमें आधा एक नंबर बढ़ाने के लिए मैं और कैसे इसको इंप्रूव करते जाऊँ। इंट्रो में प्रॉब्लम आ रही है, बॉडी में प्रॉब्लम आ रही है, डायग्राम नहीं ऐड हो रहे हैं, क्वेश्चन ही नहीं आ रहा है समझ में, जहां फंस रहे हो करते जाओ। ये माइक्रो थीम खत्म हो गई, मूव ऑन टू द नेक्स्ट माइक्रो थीम। उठाओ डायमेंशन समझो, पीवाईक्यू लिखो, एक्सपेक्टर बर्निंग इशू से कंटेंट लो, उसका टेस्ट लिखो, मॉडल आंसर से ओरिजिनल पॉइंट उठाओ, सारा लेके मेंटर के सामने बैठ जाओ। खत्म माइक्रो थीम। गो टू द, डू द सेम थिंग फॉर द न्यू माइक्रो थीम। इसके अलावा नाउ जो मैंने आपको बताया ना, कंपेयर इट विथ हाउ यू आर स्पेंडिंग योर डे टुडे इन योर ओन हेड, आपको आंसर मिल जाएगा कि केओस क्या होता है और एक सिस्टम क्या होता है। यू विल ऑन योर ओन रियलाइज कि एक सिस्टम से पढ़ने में और एक खुद के केओस में पढ़ने में थोड़ा तो डिफरेंस होता है। सो वो नहीं करो, लाइक अब एवरीथिंग इज आउट देयर, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, राइट? सो दिस इज द 90% दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट, 10% इज जस्ट हैविंग दैट पीडीएफ। ठीक है? ये, सो इट इज द सेम थिंग, राइट? लुक एट दिस, सिर्फ पिंक वाले पे फोकस करो आप, और कुछ मत देखो। लुक एट द पिंक वन ओनली। माइक्रो थीम वन, रिवर्स सिस्टम, पीवाईक्यू एक्यूरेसी चेक। नेक्स्ट डे उठोगे, पीवाईक्यू का डायमेंशन एनालिसिस किया। थर्ड डे उस डायमेंशन से समझ लिया तो मैं फ्लैश नोट्स पढ़ूंगा। फोर्थ डे फ्लैश नोट्स और एडिशनल जो प्रेडिक्ट कर सकता हूँ वो, और वन पेज नोट्स बनाऊंगा। इसके आगे अगर जाते जाओगे तो यहाँ लिखा हुआ है कि मॉक टेस्ट दोगे आप, ये लिखा हुआ है, मॉक टेस्ट दोगे डोमिनेट में, और अपनी एक्यूरेसी चेक करोगे। जब ये पांचों चीजें हो गई हैं, मैं दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो आपको बोल दे कि आपको रिवर्स सिस्टम से क्वेश्चन नहीं बनेगा, या फिर आपको खुद कॉन्फिडेंस लो लगेगा, चांस नहीं है। आप मुझे इसमें से एक भी कोई लीकेज दिखा दो, कहां से लीकेज है? इट इज द मोस्ट वाटर टाइट प्रिपरेशन एवर। ठीक है? तो अपने आप को ना इंट्यूशन से, इंस्टिंक्ट से हटा दो भाई, थोड़े थोड़े इस साल के लिए, लाइक फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर साइकिल, फोकस ऑन द एग्जाम लॉजिक, उसी को ही ओबे करना है, उसको ही फॉलो करना है। ठीक है? दिस इज व्हाट दिस इज व्हाट अ पार्ट ऑफ अ सिस्टम फील्स लाइक, टू बी अ पार्ट ऑफ अ सिस्टम। एक केओस से मत पढ़ो, कंपेयर दिस वे ऑफ अप्रोचिंग एग्जाम इन सिलेबस इन माइक्रो थीम्स टू what you might be doing, I'm not sure, मुझे कैसे पता होगा, बट आप अपने दिमाग में इन योर हेड यू कैन कंपेयर। जो भी गैप समझ में आ रहा है, मिस अलाइनमेंट समझ में आ रहा है, प्लीज ठीक करो यार उसको, लाइक कम बैक टू अ एग्जाम लॉजिक काइंड ऑफ अ प्रिपरेशन, ना कि इंस्टिंक्ट बेस्ड। ठीक है? तो माइक्रो थीम उठाना है, पीवाईक्यू समझना है, एक्सपेक्टर करो, बर्निंग इशू से एनरिच करो करंट अफेयर्स, और आगे जाके टेस्ट दो। दिस इज द अदर 90% ऑफ द मेंस प्रिपरेशन। आई ऑल्सो वांट टू शो यू, क्योंकि सिर्फ बातें कर देने से कुछ नहीं होता, लेट मी शो यू हाउ इट एक्चुअली हेल्प्स पीपल। सो एक डेलिबरेट इवोल्यूशन है ये हमारे एक्चुअल स्मैश मेंस के बच्चे का। दिस इज FLT1 जो मेंस देने वाला, दिस दिस पर्सन इज क्वालिफाइड मींस 3 days बैक। ये मतलब ऑफ कोर्स यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, बट जस्ट ग्लांस थ्रू इफ यू आर एबल टू, कि कुछ भी अगर समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत, आई एम नॉट श्योर व्हाट इज योर स्टेज ऑफ आंसर राइटिंग एटसेट्रा, बट मैसिव गैप्स, दिस इज द फर्स्ट टेस्ट, मैसिव गैप्स इन व्हाट क्वेश्चन इज आस्किंग एंड व्हाट दिस पर्सन इज राइटिंग। मतलब क्वेश्चन की डिमांड समझने में ही मुश्किल हो रही है, आगे एक बॉडी कंटेंट की तो बात ही छोड़ दो अभी। ठीक है? अगर आप कुछ भी हमारे जो मेंटर के या एवेल्यूएटर के नोट्स है थोड़ा भी पढ़ पा रहे हो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि बहुत ज्यादा मिसअलाइनमेंट है। ठीक है? आप इवन मार्क्स भी देख लो यहाँ पे, कि इंट्रोडक्शन में 0.25 मार्क्स है, बॉडी में कम, कंक्लूजन में ऑलमोस्ट हाफ मार्क्स है, तो 2.5 मार्क्स मिल रहे हैं, एंड जस्ट विद इन फ्यू टेस्ट डबलिंग द मार्क्स। स्ट्रक्चर में बदल गया है, इनके पेपर भी कंप्लीट होने लगे, ही इज एबल टू राइट द कंप्लीट पेपर नाउ। ये बार बार लूप से निकलने में वो कॉन्फिडेंस जो बिल्डिंग होता है, वो आपको एक्चुअली में समझ में आने लगता है जब आप आंसर लिखते हो। क्यों? क्योंकि भैया आपने छोड़ा ही नहीं है कुछ, आपको एक्चुअली में ये पता चल गया कि यूपीएससी अब क्या चाहता है। तो मुझे पता है ये डायमेंशंस पूछ सकता है, लो भाई मैं तो पढ़ के आया हूँ, आगे दो और पूछ सकते हो, वो मैंने भी एक्सपेक्टर से कर लिया है। लाइक लिटरली इट इज लाइक आई एम जस्ट रिपीटिंग कि इससे ज्यादा वाटर टाइप प्रिपरेशन आपको भी नहीं करने का, लाइक दिस इज द ओनली वे टू गो अहेड विद द सिस्टम, राइट? अब आप ये पढ़ लो, वही, दिस इज द सेम गाय, इनका भी मेंस में सिलेक्शन हुआ है, नेम इज संजय, यू कैन चेक। पहले में देखो, इश्यूज इन इंट्रोडक्शन एटसेट्रा, ये हमारे मतलब दीज आर मेंटर के साथ कॉल, एंड ये देख लो। सो एवरीथिंग इज लॉग्ड सो दैट हमको भी पता चलता रहेगा टेस्ट आफ्टर टेस्ट कुछ इंप्रूव हो भी रहा है कि नहीं। इवेंचुअली ही इज इन द लिस्ट, तो ही इज गोइंग फॉर द इंटरव्यू नाउ।
इज इन द इंटरव्यू प्रिपरेशन, बट द पॉइंट इज कि जब आप एक माइक्रो थीम लूप को खत्म करने लगोगे तो आपके आंसर में वो रिफ्लेक्ट होने लगता है विद इन फ्यू टेस्ट, कोई डाउट ही नहीं है उसमें। बस आप एक इंस्टिंक्ट को हटा दो, अपनी मन मर्जी से पढ़ना बंद कर दो भाई प्लीज, कम बैक टू व्हाट यूपीएससी डिमांड्स। और उसका सबसे बेस्ट, लाइक आई स्टार्टेड विथ, इंडिस्पेंसिबल है, आपकी पीडीएफ आपके सामने होनी चाहिए। अब माइक्रो थीम की प्रीलिम्स भी लॉन्च कर दी है और ये फ्री में अवेलेबल है, तो उसका कोई मतलब क्या रीजन दोगे आप? सामने रखो और ऐसे फ्लैश नोट्स और एक्सपेक्टेड नोट्स और स्मैश मेंस और डोमिनेट प्रीलिम्स के टेस्ट देने शुरू करो। लाइक कवर ईच माइक्रो थीम इन दिस मैनर, राइट? ये कंप्लीट लूप होता है। तो 10% में मत फंसे रहना, ओ आई हैव द पीडीएफ, सब सही है, लाइफ इज गुड, इट्स नॉट। व्हाट अबाउट द रेस्ट 90%, जो मैंने आपको बता दिया, राइट? सो एक रूल बेस्ड सिस्टम को फॉलो करो, दैट इज व्हाट इट मेंट, राइट? तो कोई कोर्स लेक्चर हटा, मतलब उससे कुछ होना नहीं है। तो इफ दैट वाज द केस, एनीवन कैन जॉइन एनीथिंग एंड हो जाएगा, राइट? यू नीड अ सिस्टम। एटलीस्ट वी कैन प्राउडली से हम उससे नीचे तो आप काम बात ही नहीं करते, काम ही, वी वांट टू फॉलो दैट सिस्टम, राइट?